However, it is completing 30 years when Panchayati Raj institutions became an act and it became a part of Constitution of India. But Panchayati Raj institutions has long history. In fact, in India, it was more than 2,500 years. There was village republic in the sense and also known as Panch Parmeshwar. So Panchayati system as such is existing in India since long time. But as a part of constitution, it became part in 1992. However, on this day, means on 24th of April 1993, it came into force. So in that way, it will complete 30 years next year. But as on when it became part of constitution, it became 30 years, means it is 30 years completing this year. So in Panchayati Raj institutions, however, before that, in fact, it is 73rd Constitutional Amendment Act, and before that, in 64th Constitutional Amendment Act, Amendment Bill was presented by Rajiv Gandhi government in 1989. It was having majority, huge majority in Lok Sabha, so it was passed in Lok Sabha without any hindrance. But in Rajya Sabha, it was not passed. So after that, again some effort was put by prime ministers, other prime minister, for example, VP Singh, Chandrasekhar, but finally during the Narasimha Rao government, it became part of constitution. So there were some provisions made ki one-third seats will be reserved for women. Some states like Bihar reserve 50% seats for women. Every state was asked to reserve seats of SC and ST as per their population, means proportion of their population. Okay, it is based on mainly LM Sanghvi committee recommendations. In India, they are at three tier, means at village level, Gram Panchayat is there, at Mandal level or means block level, Mandal Parishad, Block Samiti or Panchayat Samiti is there, and at district level, Jila Parishad is there. For states where population is less than 2 million, just take for example of Sikkim. Sikkim has population less than 2 million. So it is having only two tier, means they are free to have two tiers only, means they can escape uh, the Mandal Parishad or Block Samiti or Panchayat Samiti. In different state, the Panchayat, Gram Panchayat head is known as different name. For example, in UP, they are known as Pradhan. In Haryana, for example, Jammu and Kashmir, they are known as Sarpanch. In Bihar, for example, Mukhya is the main person. It is about Article 243G, where 29 subjects are there in 11th schedule, part 9 of Constitution. So in majority of Indian states, Gram Panchayat are still evolving in the sense they are not able to garner, they are not able to collect the funds which is required for its own development. It is fund is provided to them by a state government and central government. So why this is important this year? It is not जस्ट कि इट इज कंप्लीटिंग 30 इयर्स। आज के दिन में देखो प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्रधानमंत्री, इनफैक्ट जो आर्टिकल 370 के चेंजेस के बाद फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में जा रहे हैं, और जम्मू में वो जो है देश के रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत के और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, तो देश भर के पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स को वो संबोधित करेंगे, और बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे जो डेवलपमेंट वर्क हैं उसमें उनकी भागीदारी को एक तरह से सराहना भी करेंगे, और आगे आपसे क्या अपेक्षा की जाती है इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। आपने हाल के दिनों में देखा है कि जो पंचायती राज है, तो कहीं ना कहीं इसने जो ग्रास रूट लेवल पे जो एक महात्मा गांधी का ड्रीम था कि जो इंडिया एक होना चाहिए, भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है, तो कहीं ना कहीं अब वो धीरे धीरे रूट
करता जा रहा है। धीरे धीरे ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी एक तरह से पहुंच रहा है। कुछ वो लोग जो घर से बाहर नहीं निकलते थे, जो बहुत ऐसे लोग थे जिन्हें वोट देने का अधिकार इन द सेंस की होने के बावजूद भी कुछ लोग देने नहीं देते थे, आज वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सामने आ रहे हैं, विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, विकास की चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स धीरे धीरे करके लागू की जा रही है। इनफैक्ट देखो, जब 93 में ये फोर्स में आया, लेकिन तुरंत ऐसा नहीं है कि लागू हो गया। सारी चीजें जो ग्राउंड लेवल पे जो पंचायतों का गठन हुआ, जैसे हम बिहार में यदि देखते हैं, क्योंकि बिहार से मैं बिलोंग करता हूं, तो उसको मैं ऑब्जर्व यदि करता हूं, तो 2001 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ और लेटेस्ट जो है 2021 में हुआ। तो 21 में इन द सेंस कि वो होना था अप्रैल मई में होना था 2021 में, लेकिन कोविड 19 के कारण जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो संपन्न हुआ। तो जब हम 2001 से देखते हैं और 2021, तो 20 इयर्स का जो इसने जर्नी किया, तो इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी आई और बहुत सारी निगेटिव चीजें भी आई। पॉजिटिव चीजों का मतलब ये है कि बहुत सारे वो लोग जो घर से नहीं निकलते थे, आज एक तरह से अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एक तरह से जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी विकास के कार्यों में भागीदारी ले रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव है। जो बहुत सारे गांव में, बहुत सारे रीजन्स में, बहुत सारे लोकेलिटी में देखोगे कि SC ST हैं, तो उनको सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था, उन्हें बहुत बार वोट भी नहीं देने के लिए मिलता था। आज के डेट में रिजर्वेशन है उनका भी इसमें, तो वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और जो भी विकास के कार्य हैं उसमें वो बता रहे हैं भी कि यस, ये यहाँ चाहिए, यहाँ ये डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसने एक ये भी चीज किया है कि करप्शन को एक तरह से ग्रास रूट लेवल पे पहुंचा दिया है। करप्शन को ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाने में इसने मदद किया, क्योंकि बहुत सारे जो हैं फंड आज के डेट में आते हैं। अब ये देखो क्या होता है कि फंड जो है वो ग्राम लेवल पे यदि किसी से उगाही किया जाए, तो हर कोई अवेयर ज्यादा रहेगा। जस्ट हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझे कि कोई गांव में है, अब गांव वाले से पानी के लिए रेगुलर टैक्स लिया, इन द सेंस कि पानी जो आता है, मान के चलो रेगुलर चार्जेस लिया जाए। अभी चार्जेस जो है बहुत कम लिया जाता है, इन द सेंस जैसे जहां तक मैं अपने गांव में जान रहा हूँ कि 30 रुपी पर मंथ फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ का वाटर का चार्ज लगता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यूजेज तो बहुत ज्यादा है, तो उस अनुसार यूसेज के अनुसार पानी लगे। फॉर एग्जाम्पल कोई गांव में शॉप लगा रहा है, उससे चार्ज लिया जाए। ये सारी चीजें जो जो लोग टैक्स इस ग्राम पंचायत के जो सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल 29 सब्जेक्ट्स हैं आर्टिकल 243G में, तो यदि गांव के लोगों से टैक्स लिया जाए, तो फिर वो डिमांड करेंगे, वो ऑडिट चाहेंगे कि भाई हम लोग जो टैक्स डायरेक्ट दे रहे हैं, तो उस टैक्स का भाई पैसे कहाँ तुम खर्च कर रहे हो। लेकिन अभी क्या होता है कि जो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से आ रहे हैं, कुछ फंड जो हैं पंचायतों के लिए डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आते हैं, और जो मेजोरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि एक गांव का आदमी है, उसको लगता है कि हमारा पैसा कहाँ है, वो तो गवर्नमेंट दे रही है, तो गवर्नमेंट दे रही है तो अब जो भी करे, ये जो मेंबर हैं वो जो भी करे, मुझे उससे क्या मतलब है, हमको कुछ मिल रहा है तो ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज मान के चलो कि लेट्रिन रूम बनाने के एक्सपेंडिचर, लेट्रिन बनाने के एक्सपेंडिचर दिए गए, बहुत लोगों को जो इंदिरा आवास योजना के तहत दिए जाते हैं, और बहुत सारी चीजें दी जा रही है। सपोज नल जल के तहत, या रोड डेवलपमेंट, या लाइट लगाने के लिए। अब जस्ट सोचो कि कहीं लाइट है, कहीं नहीं है, कहीं कुछ चीजें, सार्वजनिक टॉयलेट बना ना बना, स्कूल में प्रॉपर व्यवस्था है पानी का है ना है, तो वो चीज पर बहुत आदमी ध्यान नहीं देता है कि हमने कहाँ दिया है। एक तरह से वो सरकार से आ रहा है, लेकिन जब आदमी खुद टैक्स देगा, खुद कर देगा कि हाँ ये चीज है, इसका हमने दिया है, तो यार हमने खुद इतने दिए हैं, गांव के पूरे लोग यदि देखे जाए तो इतने पैसे दिए हैं, तो उस पैसे को कहाँ खर्च किए हो। तो ये एक होना चाहिए। जैसे आप देखोगे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे केरला है, तो वहाँ लिटरेसी रेट देखो बहुत ज्यादा है, लिटरेसी एजुकेटेड बहुत ज्यादा लोग हैं, अवेयरनेस ज्यादा है। तो वो सारी चीजों के लिए वो डिमांड करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट के लिए फंड आ रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है। और इनफैक्ट बहुत सारे चीजें जो हैं वो गांव के लोग उस चीज को कलेक्ट करते हैं, तो उनको पता है कि ये सारी चीजें इससे हो सकती है। आप यदि बहुत सारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस देखोगे,
तो उन प्रैक्टिसेस में वो सही है। तो कुछ चीजों में ये एक तरह से नुकसानदेह भी हुआ है कि करप्शन वगैरह को ग्रास रूट लेवल पे पहुंचा दिया। कुछ जगह देखोगे कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को, जो कास्टिज्म को है, इसने कहीं ना कहीं और बढ़ाया कि अच्छा तुम्हारे गांव में किस कास्ट का है मुखिया, सरपंच, प्रधान या जो भी है। कुछ जगह देखोगे कि पार्टी लाइन पे एक तरह से है। तो बहुत सारी चीजों में जो दो पड़ोसी थे बहुत अच्छे संबंध रख रहे थे, लेकिन छोटे लेवल पे मान के चलो कि एक वार्ड मेंबर के तौर पे इलेक्शन कंटेक्स्ट किया, तो अब उसमें से हाँ तुम हमारे अगेंस्ट खड़ा हो गया, तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ये सारी चीजें प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का प्रॉपर जो है वो कमीशन, कि हाँ आपके लिए यदि इंदिरा आवास मिलता है तो इतने पैसे देने होंगे। तो जब बहुत सारे ऐसे इशू हैं, तो लोग, कुछ ऐसे लोग सोचते हैं कि ठीक है, यदि हम पैसे नहीं देंगे तो फिर मुझे कॉलोनी नहीं देगा, हमें टॉयलेट के पैसे नहीं दिए जाएंगे या व्हाट्सोएवर। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है चीजें जो हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे यूपी गवर्नमेंट ने हाल में न्यूज़पेपर में यदि आपने देखा होगा तो उसमें ये आया था कि जो प्रधान हैं वो, उनकी प्रॉपर्टी जो है, उनके संपत्ति जो है, उनके एसेट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको सैलरी, तो यदि देखा जाए तो ये क्या है कि अब जो प्रधान है तो उनकी अब सैलरी अच्छा खासा करने का, यूपी में बहुत अच्छा एक तरह से गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन के अनुसार कर रही है। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल यदि देखो तो जो ये माना जाता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो एक तरह से उनके लिए मनी इज नॉट द मेन मोटिव, इट इज अबाउट कि सर्विंग सर्विंग देयर पीपल, सर्विंग देयर लोकेलिटी, सर्विंग देयर विलेज, सर्विंग देयर ब्लॉक, सर्विंग देयर डिस्ट्रिक्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। लेकिन अभी जैसे है, हर जगह है कि कुछ सैलरी धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है, इस वजह से कि कहीं ना कहीं एक करप्शन का ये भी होता है कि यदि आप उनको सैलरी नहीं दे रहे हो, जस्ट इमेजिन करो कि एक कोई सोचता है कि हम दिन रात परेशान रहते हैं, यहाँ इधर रोड क्या स्थिति क्या है, इधर पौधे लगे या ना लगे, नल जल किसी के पास पहुंच रहा या नहीं, फिर उसके बाद कोई सिग्नेचर करवाने आते हैं, कोई कुछ गांव में विवाद हुए हैं उसको हम समझाने जाते हैं, और मिलता है कितना, तो 5,000, तो 5,000 में वो कैसे वर्क करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उनको सैलरी भी ये बढ़ाने चाहिए, नो डाउट। और उसके बाद प्रॉपर तरीका से ऑडिट एक तरह से कि आपने कितने एक्सपेंडिचर किए हैं वो सारे होने चाहिए। फिर बीच में जैसे है कि प्रोविजंस होने चाहिए कि यदि आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट है मान के चलो कि मिड टर्म में एक तरह से 5 इयर्स का होता है टर्म, तो 5 इयर्स में देखो हाफ, जब टेन्योर हो जाता है 2.5 ईयर, तो एटलीस्ट आपको रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत होनी चाहिए कि आपने क्या डेवलपमेंट किया है, क्या आपको कितने फंड आए एटलीस्ट। ये जो इनफैक्ट देखो, जो ग्राम पंचायत में, जो पंचायत जो ग्राम सभा होता है, तो ग्राम सभा में एक तरह से इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यही एक आधार है कि डायरेक्ट इन मैक्सिमम, इंडिया में क्या देखते हो, इंडिया जैसा लार्ज कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहां हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो हमारे बिहाफ पे वो शासन करते हैं, इन द सेंस वो रूल्स बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं सारी चीजों को। लेकिन जो ग्राम सभा है उसमें जितने भी एडल्ट मेंबर हैं, वोटर्स जो एज ए वोटर के रूप में रजिस्टर हैं, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एज ए ग्राम सभा की जब मीटिंग होती है तो उसमें ये उनके रखना चाहिए कि हाँ हमने इतने दिनों में ये इतने, हम फॉर एग्जांपल 2.5 साल में हमने ये विकास किए हैं, इतने फंड आए हैं। एटलीस्ट सारे लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअल में कितने फंड आ रहे हैं, तो उस फंड का ऑडिट ये दिखाना होगा कि इतने हमने ये किए हैं। इनफैक्ट देखोगे कि बहुत सारा जगह, कुछ जगह जो करप्शन के चार्जेस लगते हैं, तो बहुत जगह जेल वगैरह भी होता है, बहुत जगह कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन एक तरह से अवेयरनेस थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है, हर लोग एटलीस्ट जागरूक रहे कि हाँ, हर ग्राम पंचायत को फॉर एग्जांपल जो कम्युनिकेशन है, अभी भी बहुत सारी जो कम्युनिकेशन है वो मिसिंग है, कम्युनिकेशन मिसिंग है कि जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं तो उनको भी प्रॉपर तरीका से पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको उस लेवल में, उन सिंपल लैंग्वेज में वर्कशॉप के थ्रू ये सारी चीजों को समझाने की जरूरत है। अब जैसे ग्राम सभा वगैरह होता है तो बीच बीच में होना चाहिए कि हायर ऑफिशियल से सम टाइम कि यस, इस एरिया में
सपोज ग्राम सभा की बैठक होगी जिसमें आपको स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा। और जब किसी गांव में या किसी जो ग्राम पंचायत अच्छा कर रहा है तो उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस को समटाइम जैसे लोकल आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हो, थ्रू लोकल चैनल जैसे भी हो, पब्लिक में आप बता सकते हो, स्कूलों के माध्यम से आप बच्चे को बता सकते हो ताकि वो घर में बताए। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि एक 8th क्लास का बच्चा है, वो बहुत सारी चीजों को अब समझने लगा है, तो आप एटलीस्ट उसको ये बता सकते हो कि देखो ये विकास की योजनाएं होती है, ये फंड आते हैं। तो एटलीस्ट ग्रास रूट लेवल पे वो बंदा जो अभी 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, वो आगे आकर के इसमें भागीदारी कर सकता है। जैसे आपने बहुत सारे सरपंच का नाम सुना है कि जैसे अब हरियाणा में देखो एक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब छोड़ करके एज ए सरपंच के रूप में फाइट किए, उसके बाद वो जीते, गांव में बहुत सारी चीजों को डेवलप किए। फॉर एग्जांपल छवि राजावत को आप सब लोग जानते होंगे, और एन नंबर ऑफ ऐसे हैं जिनको की अवेयरनेस है उनके, और वो उनके अंदर जो है डेवलपमेंट का मादा है। जो एरिया में जहां महिलाएं घर से बाहर एक तरह से पंचायत में आने के लिए मीन्स अलाउ नहीं थी, आज वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ सलाह मशविरा वगैरह कर रही हैं और वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अब बहुत सारे इश्यूज के कारण ये चर्चा में है। 30 ईयर्स आपका कंप्लीट हो रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट ही है। बेसिक्स आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जानोगे, और उसके बाद जो है एज ए आप आर्गुमेंट राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग या ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देखो। कोई भी ऐसे आता है, रिपोर्ट आता है, आर्गुमेंट आता है, तो ये वैक्यूम में नहीं आता है। आप किसी भी चीज को देखो तो कहीं ना कहीं वो घटनाएं चल रही है, वो न्यूज में रेगुलर रूप से चलता है। जैसे सो यूपी में इनफैक्ट लास्ट ईयर जब चुनाव हुआ तो बहुत सारे टीचर्स जो हैं, टीचर्स एसोसिएशंस और जो एनजीओज हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनका कहना है कि मोर देन 1500 टीचर्स का जो है कोविड के ड्यूरेशन में, इलेक्शन के ड्यूटी में उनका डेथ हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो बयान था, इन द सेंस जो स्टेटमेंट था, जो रिपोर्ट था कि नहीं, मिनिमम जो है सिंगल डिजिट में 4 5 10 जो भी है वही उनका डेथ हुआ है। तो ये इस कारण से फिर उसके बाद जो करप्शन वगैरह के चार्जेस के कारण, इन द सेंस की जो पंचायत प्रमुख हैं यानी कि जो ग्राम प्रधान हैं, उनके एसेट्स में काफी इम्प्रूवमेंट, काफी ज्यादा उछाल आया है। तो कहीं ना कहीं वो कहाँ से आया, तो ये ऑडिट होने की जरूरत है। फिर उसके बाद आज प्रधानमंत्री जम्मू एंड कश्मीर में है, तो जम्मू में रिप्रेजेंटेटिव्स को कर रहे हैं। बहुत बार देखोगे कि मन की बात में रिसेंट टाइम में जैसे वाटर कंजर्वेशन हुआ या कुछ और हार्वेस्टिंग से लेकर के और बहुत सारे चीज़ों की जो वेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, या कोई जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज के डेट में किया जा रहा है। तो यदि किसी प्रोडक्ट को वो प्रमोट करने के लिए, जैसे आप देखोगे कि तेलंगाना वगैरह में देखा कि दाल प्रोसेसिंग यूनिट कुछ विलेज में स्टार्ट किया गया, कुछ महिला जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने स्टार्ट किया, और एक तरह से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया। तो जो वेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ये इस ईयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिनको भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी ये होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप या तो व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो, जिन्हें भी टेस्ट देना है। फॉर एग्जांपल आज जो है सेवेंथ टेस्ट नंबर 7th आज स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले 6 टेस्ट हमने पेपर 1 पेपर 2 के कंडक्ट करवा लिए। जिन्हें भी टेस्ट, देखो टेस्ट ये है, पेड टेस्ट है। हर साल हम कुछ टेस्ट जो हैं वो आपको ओपन में देते हैं। जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो हम कुछ टेस्ट आपको देंगे ओपन में भी। लेकिन देखो हर जैसे पेपर 2 है, प्रॉपर तरीका से आपको कॉपी चेक करने में बहुत एनर्जी लगता है, टाइम लगता है। तो आप कुछ पे करते हो प्रॉपर तरीका से। किसी के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, आप अपने आप से पूछो तो किसी के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है ना कि ये कर सकता है। तो सबके टाइम की कीमत होती है, यू हैव टू अप्रिसिएट द टाइम। और यदि आप दूसरे के टाइम का वैल्यू यदि करते हो तो आप अपने टाइम का भी वैल्यू करना सीखोगे। और जिसने भी टाइम का वैल्यू देना सीख गया तो वो थोड़ा वक्त लग सकता है, जरूर क्वालिफाई करेगा, करेगी। सो गिव योर बेस्ट पुश व्हाटसोएवर सिचुएशन इज देयर। ओके, थैंक यू।